Hello, guys. Welcome to the second match of Group D of Day-2 Eklavya 1.0, which is a PUBG approved tournament. And along with me, I have Atish as my co-commentator for the match. The last match was exhilarating and it played out so well. These teams, they showed their real potential and their capabilities, and they outperformed themselves. It was really amazing to see how these teams performed. Atish, what do you have to say about the previous match? बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। पिछला मैच सनहॉक का, व्हाट अ ट्रमेंडस मैच दैट वाज। मतलब कितने सारे अंडरडॉग टीम्स कितना अच्छा खेलती है और ये शोकेस करते हैं कि यस दे नीड अ चांस टू शोकेस देयर परफॉर्मेंस टू द टायर 1 टीम्स, टू द टायर 1 टूर्नामेंट्स। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम performing and showing their showcase. Gaurav. Absolutely, and that's what our vision is, to give a platform to the underdog teams. This tournament is going to run for the next 9 days. We'll have the grand finale on 25th. We have the group stages till 19th of this month. उसके बाद group round 2 है, फिर round 3, and then we have the finals. We'll have 12 teams qualifying from each group that is playing right now. Each group consists of 20 teams. और जैसे देख सकते हैं, if we shift to our team list, we will be able to see कि हमारे जो आज ये मैच खेल रहा है, जो 20 टीम्स है. Let's have a look at our teams. So Atish, see, we have Demitron, we have Eternity X Reborn, we have Team of Fear, Team No Fear, we have Cruel Warriors, Nuclear Mutants, 90Y, Boom Bam, Fallout Correction, Droid, Metaphors, Rogue Rampage. We have Mute Assassins, Rising Nepal, Team QM, Night RVNG, and we have along with us Wild XCZ, Boardheart Expert, Delivery to Lobby, Logical, and DC Elites. These are the 12 teams that will be fighting for that chicken dinner. What do you have to say, Atish? Exactly. So these are our Group D teams. Group D के जो अंडरडॉग टीम्स हैं, they were here। और आज यहाँ पे देखते हैं ग्रुप डी का मैच कैसा होने वाला है, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि एरेंगल एक काफी बड़ा मैप है। सो कई बार ऐसा होता है कि सर्किल 7 सर्किल 8 सर्किल तक जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे टीम्स किस तरह से इस सिचुएशन को कोप अप करेंगी। क्या वो अर्ली फाइटिंग्स के लिए जाएंगी या वो होल्ड ऑन करके लास्ट सर्किल तक सर्वाइवल के लिए जाएंगी। गौरव। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और जो मैच हम खेल रहे हैं अभी, जो मैप खेलेंगे, दैट्स इरांगल, एंड इरांगल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैप्स इन द गेम. इट्स 8 by 8 kilometer map. There's a lot of different terrains that we have. It's mostly mostly hills, and we have a lot of grasslands, open areas, but it's the most, I personally feel that's it's the best map to play in. We'll have different maps as we move ahead in the tournament, but as of now we have Irangal and Shanok for the group stages. Or Atish, as you know, Irangal was the first map which had come out of PUBG, and players are quite well accustomed to this map, right? So how do you think, people strategize and they move ahead in the game? Everyone knows the in and outs of each and every game. So what do you have to say about that? बिल्कुल सही कहा गौरव। लाइक एरेंगल एरेंगल इज अ मैप की जो सारे प्लेयर्स काफी पसंद करते हैं खेलना। लाइक जो भी पबजी में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है कि या चलो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग पबजी, सो ही विल आल्सो स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम एरेंगल, बिकॉज एरेंगल एक ब्रांड बन चुका है पबजी मोबाइल के मैप्स के अंदर। और काफी सारे प्लेयर्स काफी हैबिचुएट हैं एरेंगल के साथ। सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज देयर ओन कैपेबिलिटीज एंड हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज कि वो किस तरह से यहाँ पे उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। और रही बात ओपन फील्ड्स की, सो यस, इन एरेंगल ओपन फील्ड्स आर अ वेरी डेंजरस थिंग्स। गौरव। Yes, Atish, जब जोन बनता है ना पूरे ओपन एरियाज में, टीम्स हैव टू रियली प्ले आउट देयर विट्स, एंड दे नीड टू स्ट्रेटेजाइज इन सच अ वे दैट दे मूव अराउंड विद स्मोक्स. और जैसे ही देख सकते हैं, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग द मैच. विल स्टार्ट ऑफ रियल सून इन अ फ्यू मोमेंट्स. सो आई विश ऑल द टीम्स ऑल द बेस्ट ऑफ लक, एंड द फ्लाइट पाथ इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन दिस मैच. तो वही देखने का बात है कि ये फ्लाइट पाथ कैसे आता है, एंड हाउ डू द
the teams take on their landings. It's going to be really interesting to see, and I wait for that exact moment when we can see the flight path. So let's just watch the map video right away. As we can see, at least the flight path is here, and it's of a more northeastern kind of a flight path. ऊपर shelter से आते हुए गटका क्रॉस करते हुए रोजो क्रॉस करते हुए it's going towards the end of the northern side of Quarries. तो अच्छा flight path दिया गया है. A lot of places are accessible. Hot drops जो है, you have school, you have coaching, you have Giorgio Pool, hospital, you have the shooting range, Severny as well, Yashna as also is on the plate. So at least, what do you think? Will the players take a bigger rotation, or would they try to stay in the center of the map? जैसा कि आपने कहा, स्टॉलबर्स से होते हुए मैप लोकेशन, हमारा फ्लाइट लोकेशन सीधा गटका के एंड की तरफ जा रहा है. तो काफी सारे टीम्स यहाँ पे होंगे जिनके पास की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ड्रॉप लोकेशंस होते हैं, क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि अगर फ्लाइट पाथ चेंज हो जाता है तो कुछ टीम्स को अपने ड्रॉप लोकेशंस और रोटेशंस में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो वो सबको नजर रखते हुए हम यहाँ पे आ चुके हैं 3 नंबर 13 पे, जो यहाँ पे ड्रॉप लेके अपना लूट स्टार्ट कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं. अभी भी काफी सारी टीम्स अपने अपने लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. टीम नंबर 15, टीम नंबर 14 सभी अपने लोकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखते हैं कि कौन सी टीम अर्ली फाइटिंग लेने वाली. गौरव, एब्सोल्युटली अतीश, जैसे हम लोगों ने देखा है पिछले मैचेस में, टीम्स जनरली टेंड टू अवॉइड फाइट्स इन द फर्स्ट जोन. वो लोग लूट कर लेते हैं, एंड देन व्हेन दे आर वेल लूटेड दे want to get into the fights. So अभी देखने का बात है कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप डी, it has been putting on some really good performance. तो ये लोग कैसे करते हैं, और जो पूरा ड्रॉप लिया है, जैसे देख सकते हो, सेंट्रल ऑफ द मैप is quite filled up. There are only few teams that have taken drops in the corners, and right now we are spectating team 8 Sammy, उनके आसपास team 11 है, so they need to be extra careful and should loot up very fast. और टीम 20 के पास भी टीम 15 है, they are just around the corner, बाजू वाले घरों में ही है, so they also need to be on their toes. and टीम 15 के जो प्लेयर्स है उनसे बच के रहना पड़ेगा, because टीम 15 and टीम 20 is sure to have a fight really soon. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने. और थोड़ी देर पहले ही हमें सर्किल कटता हुआ दिखा था, एंड सर्किल मोस्टली मैंशन, शेल्टर, प्रिजन, मिल्टा का एरिया को कवर कर रहा है. बट उससे पहले भी हमने देखा था मैप पे कि पोचिंग की और रूइंस और गटका के बीच में काफी सारे टीम्स का क्लस्टर बना था. तो हमें ये देखना है कि क्या अर्ली फाइटिंग्स वहां होती हैं, या अर्ली फाइटिंग्स यहाँ टीम नंबर 20 और टीम नंबर 15 लेना चाहेंगी, क्योंकि दोनों टीम को एक दूसरे के बारे में पता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स होल्ड कर रहे हैं. और टीम नंबर 15 के आप एल्बर्ट को देख सकते हैं, वो काफी अलग ही टीम से जाके एक अलग ही एंगल लिए हैं. तो देखते हैं ये फाइट किस तरह से जाती है, या यहाँ पे टीम नंबर 20 बैक ऑफ करना चाहेंगी. गौरव, Absolutely. We have 70 players in the lobby, 19 teams alive as of now. और जैसे हम देख सकते हैं, team 20 they are taking a good position. जोन दे दिया गया है, इट्स मोर ऑफ अ ईस्टर्न काइंड ऑफ अ जोन, और थोड़ा सा इट टचेस पोचिंग की, टचेस स्कूल. जो पोचिंग की में देयर आर 2 टीम्स, और उसके आसपास टीम 2 है, टीम 6 है. पर आई एम सरप्राइज नो टीम इज टेकिंग अ रोटेशन फ्रॉम मिलिट्री बेस, क्योंकि वो जोन के अंदर है. तो मिलिट्री बेस में आप अगर चले जाते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ गन पावर दैट यू कैन कलेक्ट, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू आउट इन द होल गेम. And as we can see also, Atish, we have a lot of people commenting on our live stream. We have Arpan Taskar for Team No Fear. We have Akanksha Sadhu, Boom Bam. We have Demiraj, Team Rog. We have Dhanush for Arpan Kedar and Saurav. Thank you guys
for such a support. Arpan, Dhanush, and everyone present in the stream, I wish all your teams the best of luck, and let's see how they perform. And don't forget to like, subscribe and share as much as you can. तो जैसा आप सबके स्क्रीन के ऊपर अभी टीम नंबर 8 और टीम नंबर 11 आ चुके हैं याशनाया के ऊपर, यहाँ पे टीम नंबर 11 और टीम नंबर 8 दोनों ही अपने कंपाउंड्स होल्ड करना चाह रहे हैं, और टीम नंबर 11 का अकेला प्लेयर फायर ब्लेड ही टेकिंग एक अलग ही एंगल जाके बना रहा है अपनी टीम से दूर, बट उनको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर यहाँ पे नॉकआउट हो रहे हैं तो सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा कम है। और इसी के साथ टीम नंबर 20 भी अपनी लूट पूरी करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। गौरव, Absolutely. Also, as we are finding more shout outs, so shout out to Papa Ji by Akanksha Sadhu. So there's a lot of things going on in our stream right now, and we can see some really good strategies implemented by the teams. We can see team 20 and team 15, they are very close. और बाकी भी जो teams है, they have not engaged in a face-to-face gunfight as of now, but they do know each other, that the teams are around, and they will try to maintain their position as well as not lose out on their teammates in such early stages of the game, and that is going to be a huge advantage in the later stages. जैसे देख सकते हैं, we are seeing a fight between team 14 there, team 11 rather. Team 11 ने एक प्लेयर को मार गिराया है. They have one team kill to their name. They are playing 3 and 68 players बचे हुए हैं अभी, तो पूरा गाड़ी उड़ा दिया है. And that was some really good gun power and spray that they put forward. तो अभी देखने का बात यही है कि बाकी जो टीम्स है, as we can see team 19, team 21, team 17 जो है, it's in a very critical position. मिल्टा के पास है, तो मिल्टा के पास और फार्म के पास बहुत अच्छा फाइट देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि टीम 21 आई गेस हैज रीच्ड नोवो एंड दे विल बी ट्राइंग टू क्रॉस द ब्रिज. अतीश, और ब्रिज कैंप जब हो जाता है, इट गेट्स रियली डिफिकल्ट. व्हाट डू यू से? एग्जैक्टली अगर इस तरह का जोन बनता है कि जिसमें वाटर और ब्रीच का भी थोड़ा सा पार्ट आता है, तो वो काफी ज्यादा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन भी होती है कुछ टीम्स के लिए, जो लोग आउट ऑफ द सर्किल से रोटेशंस करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम्स यही सोचती है कि ब्रिज कैंप करेंगे सो दैट दे कैन क्लस्टर आउट अ टीम, जो दे कैन रिमूव अ टीम कंप्लीटली. बट यहाँ पे अभी भी जैसा आपने देखा, जोन के बाहर अभी भी काफी सारी टीम्स है. टीम 4, टीम 5, टीम 10, टीम 12 सारे अभी अपने रोटेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए उन लोगों को, rather than looting, क्योंकि एक बार अगर जोन का डैमेज गिरना शुरू होता है तो यू नो बेटर दैट जोन इज द एमवीपी. गौरव, एब्सोल्युटली, क्योंकि पहला जोन है, बट अतीश की पहले जोन में ज्यादा डैमेज आएगा नहीं. और जैसे हम देख सकते हैं, टीम 15 माइट हैव मिसअंडरस्टूड कि टीम 20 कहाँ पे है. यहाँ पे टीम 20 एकदम पोचिंग की के एकदम कॉर्नर में जो ड्रेनेज सिस्टम है उधर पहुंच गया, और टीम 15 कहीं दूर बैठे हुए. तो टीम 20 इज टेकिंग इट स्लो. दे डोंट वांट टू एंगेज इन अर्ली फाइट्स, और दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अदर टीम्स टू मेक अ मिस्टेक एज सून एज पॉसिबल, सो दैट दे कैन वाइप out the other teams as the game goes on. और इधर देखते देखते we have completed 7 minutes of our second game of Eklavya 1.0, a PUBG approved tournament, and we can see that we have 19 teams still left with 68 players alive. 2 प्लेयर डाउन हो चुके हैं, जैसा आप सब देख सकते हैं. 70 अलाइव थे, उसमें सब 68 अलाइव हैं, और शायद यहाँ पे टीम नंबर 15 के स्पर्श और मैवरिक को यहाँ पे टीम नंबर 20 की लोकेशन मिल चुकी है. आई थिंक दे आर गोइंग फॉर दैट हेड ऑन फाइट. यहाँ पे टीम नंबर 20 के निंजा यहाँ पे सो के एक एडीएस ले रहे हैं, और वो देखना चाह रहे हैं, वो सर्च आउट कर रहे हैं कि दूसरी टीम के प्लेयर्स कहाँ पे हैं. और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, टीम नंबर 15 के मैवरिक काफी अच्छा है, मतलब तीन प्लेयर मिलके कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं, एंड टीम नंबर 15 का अकेला प्लेयर एक पीछे से बैकफायर देने के लिए रेडी है. और यहाँ पे टीम नंबर 14 अपना रोटेशन कंप्लीट करते हुए आ चुकी है, और ये तो खतरों के खिलाड़ी में इन्हें जाना चाहिए जिस तरह बगी उड़ा रहे हैं. और इनके सामने ठीक टीम नंबर 2 आ चुके हैं, एक प्लेयर नॉक. टीम नंबर 14 का एक प्लेयर नॉक. बहुत ही अच्छा रिटर्न फायर. टीम नंबर 2 के 2 प्लेयर्स अभी भी अलाइव हैं. 2 प्लेयर्स
3 प्लेयर्स टोटल अलाइव हैं, 2 प्लेयर्स अभी भी डाउन है और ये टीम नंबर 2 का एक दूसरा प्लेयर डाउन होते हुए टीम नंबर 14 काफी अच्छी फायर पावर दिखाते हुए गौरव। एब्सोल्युटली बहुत ही मस्त गेम प्ले हो रहा है। टीम 14 हैज नॉक्ड आउट टीम 2। एक ही प्लेयर बचा, 2 प्लेयर बचे हुए हैं टीम 2 के। यू नो दे विल बी जस्ट वेटिंग फॉर दैट एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन दे कैन ट्यून इन एंड फायर ऑन दोस गाइज। और इधर आई थिंक ही विल बी ट्राइंग टू गिव रिवाइव टू हिज टीममेट, क्योंकि टीम 2 का जो प्लेयर है ही इज इन नो मूड टू रश अभी। और टीम 14 के इस प्लेयर को रिवाइव मिल जाएगा मुझे जो लग रहा है। और टीम 14 ऑलरेडी हैज 3 किल्स टू देयर नेम। देखने का बात यही है, यू नो टीम 2 का जो DTR 7 स्ट्राइकर, आई गेस ही इज अ CR7 फैन, बट स्टिल ही इज डूइंग सम, यू नो ही इज wriggling around, he is looking for that angle where he can get on for a headshot for team 14 rather। और जैसे हम देख सकते हैं टीम 15 और टीम 20 के बीच में फाइट हो रहा है उधर। दे आर क्वाइट क्लोज। टीम 20 के एक प्लेयर नॉक हो गया है, बट स्टिल वी हैव 19 टीम्स लेफ्ट, सो नो टीम has been completely eliminated from the match as of now. What do you say, Atish? बिल्कुल सही कहा। ऐसे सिचुएशन में पहले सर्किल में मोस्ट ऑफ द टीम्स मतलब फाइट नहीं लेना चाहती, एक हेड ऑन फाइट, बट क्या करें, अगर अभी आपके सामने एक टीम आती है सो इट्स बेटर यू शुड finish them, you should eliminate them and then you should move on। यहाँ पे टीम नंबर 15 के 2 प्लेयर्स के सामने टीम नंबर 20 का निंजा अकेले कंपाउंड में, इसी के साथ टीम नंबर 15 के एल्बर्ट भी नॉकडाउन हो चुके हैं और टीम नंबर 15 के बस 3 प्लेयर जिंदा है। तो टीम नंबर 15 को शायद उनके प्लेयर को जल्दी से जल्दी रिवाइव करना पड़े, क्योंकि एक 3 वर्सेस 4 फाइट में ये डिसएडवांटेज बन जाती है। और इसी के साथ टीम नंबर 15 का दूसरा प्लेयर नॉकडाउन हो चुका है। टीम नंबर 15 के मैवरिक एक बहुत ही प्यारा एंगल यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है कि व्हाट ही विल डू नाउ, क्योंकि टीम नंबर 15 के 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं एंड मैवरिक यही सोच रहे हैं कि इट्स बेटर टू बैक ऑफ राइट नाउ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अभी फिलहाल उनको सर्वाइवल पे देना चाहिए। Absolutely, जैसे एक ही प्लेयर बचे हुए, he will try to stay alive for longer। टीम 15 के 3 प्लेयर्स मर गए। टीम 20 has garnered 3 kills for them, and जैसे we can see on a live stream we have Urban Tusker, shout out for Robert, Saurav and Otire, and we also have a request for showing team 12, so we'll get on to each team as soon as possible। We are showing some good fights here, जैसे टीम 20 ने खत्म कर दिया। Let's have a look at other places as well। यहाँ पे टीम नंबर 12 जल्दी से जल्दी अपनी रोटेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। उन्हें इट्स बेटर कि वो सबसे पहले जाके सर्किल में अपनी जगह बनाए, क्योंकि टीम नंबर 12 काफी लेट रोटेशंस कर रहे हैं। और इसी के साथ टीम नंबर 7 शायद ब्रिज कैंप के शुरुआत कर चुके हैं। मिल्टा से टीम नंबर 17 भी आ रही है, टीम नंबर 13, काफी सारी टीम्स का क्लस्टर बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं सेंटर ऑफ द जोन में किस तरह से ये लोग फाइट को एंगेज करेंगे। टीम नंबर 17 शायद यहाँ पे सर्किल के अंदर मिल्टा के पास कंपाउंड्स होल्ड कर रहे हैं। शायद उन्होंने दूसरी टीम को भी देख लिया है कि वेयर आर दे राइट नाउ, सो दे आई थिंक दे विल टेक द एडीएस एंड यस विद दैट टीम नंबर 13 के ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं फ्रॉम एसएलआर। टीम नंबर 17 के ऋतिक मित्तल एसएलआर से टीम नंबर 13 के ऊपर कई सारे शॉट्स ले रहे हैं, लेकिन टीम नंबर 13 को पता चल चुका है वेयर इज टीम नंबर 17, सो नाउ दे हाउ दे अप्रोच दिस फाइट, इट विल शो अस देयर टीम पावर, टीम गेम। गौरव Absolutely। और जैसा हम देख सकते हैं we have one team that is knocked out of the match। 59 players are alive। टीम 17 ने तो स्पॉट तो कर लिया है, बट I am not sure that they did the correct thing giving away the location such early, because it's quite a distance, and even though you have a scope, you don't have 100% surety of knocking out players from here until unless you have a bolt action sniper or something as such। But again टीम 17 को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि टीम 13 knows their location and they'll be taking a rotation and trying to move
away from that place and not look at team 17 firing on them. तो वही जगह है अभी देखने का कि टीम 13 कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपने एरिया को, और बाकी जो टीम से सब जोन के अंदर आने के ट्राई करेंगे. टीम 13 इज पुटिंग इन सम बुलेट्स टू टीम 17 उधर, और आसपास मुझे ज्यादा टीम्स दिख नहीं रहे. तो दे माइट हैव some good opportunity to knock each other and then rush in on the other team. बिल्कुल सही कहा गौरव, बट यहाँ पे आप ये ध्यान में रखिए कि टीम नंबर 13 हैज द एडवांटेज विद अ हायर रीच देन टीम नंबर 17. और थोड़ी देर पहले हमने देखा टीम नंबर 17 के मित्तल के ऊपर कुछ शॉट्स गिरे हैं जिससे उन्हें खास डैमेज गिरा है. उनके लेवल 2 की हेलमेट है. टीम नंबर 13 के सारे प्लेयर्स के पास अच्छा खासा लूट है, बट स्टिल देन वो और आगे जाना चाहते हैं क्योंकि दिस इज एरैंगल. आप कुछ नहीं बोल सकते कि एट व्हाट मोमेंट क्या हो सकता है. यहाँ पे टीम नंबर 17 के एकांश अभी भी टीम नंबर 13 के ऊपर एडीएस लगाए बैठे हुए हैं कि इफ टीम नंबर 13 का कोई भी प्लेयर एक भी छोटी सी गलती करता है तो टीम नंबर 17 विल डेफिनेटली पनिश देम. गौरव एब्सोल्युटली और उधर ड्रॉप आ गया है. ड्रॉप्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन दिस गेम कि ड्रॉप में अगर अच्छा खासा मिल जाए तो इधर डीबीएस है which is not really a very useful gun in Erangel until unless you are in the last zone, but we have level 3 gear, we have a 8x scope. So जिस टीम को मिल गया है 8x scope तो Erangel में बहुत काम आता है. I guess Erangel and Miramar are the places where you can snipe to your heart's full content. तो जैसे देख सकते हैं टीम 19 is reaching out for the drop. I think they are going for the drop और उनके आसपास अभी और कोई टीम है नहीं. So they'll be taking precaution, they'll be just first scouting out कि कोई और प्लेयर है कि नहीं, and then they'll be going in for the loot. तो अभी देखने का बात यही है कि कोई और टीम आता है कि नहीं. टीम 19 seems to be well looted. उनके पास level 2 gear है. They have powerful guns on them. They have a M762. So it's very interesting to see कि बाकी टीम्स ड्रॉप लूटने आ रहे हैं कि नहीं. ड्रॉप ऑलरेडी लूट चुका है. तो इधर जैसे देख सकते हैं टीम 7 is waiting for the others. उधर ब्रिज के उधर टीम 4 और टीम 21 they are waiting for the zone to close in and then cross the bridge and reach for the zone. और अगर जोन इस साइड दे दिया तो उनके तो दिन ही बन गया उनका. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसा कि फिलहाल तो टीम नंबर 19 टीम नंबर 10 बिल्कुल सर्किल का सेंटर पकड़ के बैठे हैं, लेकिन टीम नंबर 7 जो मिलिट्री के तरफ से आ रहे हैं दे हैव अ क्लियर रोड. लाइक उनके सामने कोई दूसरी टीम्स नहीं है. वो इजीली अपनी रोटेशंस कंप्लीट कर सकते हैं, बट द ब्रिज कैंपिंग विल बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर देम. और अभी भी यहाँ पे टीम नंबर 17 और टीम नंबर 13 के बीच में वो फाइट अभी भी चलती हुई. फिलहाल तो कोई भी मेंबर्स एक दूसरे के टीम से नॉकआउट नहीं हुए हैं, बट टीम नंबर 13 के सोल को थोड़ा सा डैमेज गिरा है. एंड टीम नंबर 17 के एकांश अभी भी एडीएस खोल के बैठे हुए हैं. देखते हैं किस तरह से ये फाइट आगे बढ़ती है. लेकिन उसी के साथ जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं, प्लीज 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 शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एज मच एज यू कैन. उसी के साथ चलते हैं आगे. Let's move on जैसे to our... इधर जो फाइट हो रहा था तीश, मुझे इतना देर से ये लोग एक ही कंपाउंड पे रुक के दे आर लुकिंग अराउंड फॉर द करेक्ट अपॉर्चुनिटी. यार बॉर्डर की तरह आगे बढ़ जाओ, रश इन ऑन द पीपल. और जो जोन दिया है माशाल्लाह क्या जोन दिया है यार. पूरा एकदम you have the river in the center, you have the bridge in the zone, and you have opportunities for teams to come in for team 21 and team 4 to come in through the bridge. और बाकी जो teams है they are on the other side of the bridge. So it's a very good tactical zone. ज्यादा कवर नहीं मिलेगा. फार्म में खुला मैदान है. You have मिल्टा in the zone. तो देखने का बात यही how teams take on their positions. Do they keep moving or do they stay at one place and move around? और जैसे टीम 20 is under the red zone right now. यार बहुत ही खतरनाक होता है. You can always have a bomb dropped on your head and you can get knocked out. So they better take some cover as soon as possible. And team 12 seems to be close to them. So they'll have to be extra precautious. And as we can see right now, team 6 and team 12. Team 12 just crossed team 6. So team 6 has not opted to get into a fight with team 12. They did not opt to spray, but team 12 has stopped right in front of them, and they'll also need to keep an eye out for
टीम 20 which is approaching them. और जैसे देख सकते हैं टीम 18, टीम 8, they are playing it safe. They are not in a hurry to get into the zone. They are on the outskirts. They will get into the zone as soon as the time closes. 19 minutes are done. We have 1 minute to go for the zone to start closing down. And the next zone is going to be really, really critical, Atish. What do you say? एग्जैक्टली क्योंकि अब जो सर्किल बनेगा, अब जो जोन आएगा वो आपको अच्छा खासा डैमेज देना शुरू कर देंगी. सो इट्स बेटर कि सारी टीम्स सर्किल के अंदर जाके अपना कंपाउंड होल्ड कर ले. और यहाँ पे टीम नंबर 20 के पास कोई भी व्हीकल नहीं है, सो उन लोगों को काफी चौकन्ना होके जाना पड़ेगा. और यहाँ पे टीम नंबर 6 भी रोटेट करना शुरू कर चुकी है. आई थिंक द टीम शुड मूव इनटू द सर्किल, क्योंकि अभी जो सर्किल का डैमेज गिरेगा, बाप रे बाप, उसके बाद तो बस आपको किल जोन के फीड्स ही नजर आएंगे जोन से, क्योंकि जोन इज द एमवीपी कोई भी पबजी मैच में अगर आपको जोन का डैमेज गिर रहा है तो. और यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं टीम नंबर 14. आई थिंक आपके स्क्रीन के ऊपर टीम नंबर 19 भी नजर आ रहे हैं. आई थिंक टीम नंबर 14 का एक प्लेयर टीम नंबर 19 को स्पॉट आउट कर चुके हैं और वो बहुत ही अच्छा टीपीपी एंगल ले रहे हैं. और यहाँ पे टीम नंबर 20 के निंजा डाउन हो चुके हैं बाय टीम नंबर 8. और यहाँ पे टीम नंबर 8 का अकेला प्लेयर टीम नंबर 20 के साथ फाइट ले रहा है. दैट इज सो गुड. लाइक आप देख सकते हैं टीम नंबर 20 के 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं. इट्स अ 1v1 नहीं, यहाँ पे टीम नंबर 20 के 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं. टीम नंबर 8 के सैमी जरूर इन्हें नॉक एंड फिनिश करना चाहेंगे, क्योंकि वो पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एट द एंड ऑफ अ मैच. क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे और इसी के साथ टीम नंबर 20 इज एलिमिनेटेड. व्हाट अ फाइट बाय टीम नंबर 8. डेविल सैमी क्या खेला इस बंदे ने, गौरव. एब्सोल्युटली. और जैसे ये जो क्लच था ना यार, इतना खतरनाक था. यू नो, दे वेटेड फॉर द करेक्ट मोमेंट, दे पाउंस्ड इन ऑन टीम 20 एंड जस्ट एलिमिनेटेड देम आउट ऑफ नोवेयर. सो दैट वाज सम रियली गुड गेम प्ले. और इधर जैसे देख सकते हैं, यू नो, वी आर हैविंग अ फाइट बिटवीन टीम 14 एंड टीम 19. टीम 19 इज रशिंग इन ऑन टीम 14 क्योंकि एक प्लेयर डाउन है टीम 14 का, और नेट करते हुए एक और मर गया है टीम 14 के प्लेयर्स. तो आई थिंक टीम 14 इज कंप्लीटली नॉक्ड आउट फ्रॉम द मैच एंड टीम 19 हैज सिक्योर्ड सम गुड किल्स फॉर देम. और जैसे हम देख रहे हैं टीम 4 इज ट्राइंग टू क्रॉस द ब्रिज. The drop has come but it's in the center of the river, so I don't think people would be going for that drop. But it has a MK14, my favorite gun. Again MK14 एक बार मिल जाए यार, ऑटो मोड में चला लो, जिंदगी खुश हो जाता है यार. और जो जोन दिया है यार, क्या जोन दिया है फिर से, आधा ब्रिज, आधा पानी, आधा ग्राउंड. तो some teams are really going to enjoy this kind of a zone, क्योंकि टीम 4 जो है they have not taken a vehicle, they are taking the foot road ahead. 2 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, 2 लोग पैदल आ रहे हैं. They just, I think they are waiting for the roadblocks and the bridge camps that they were anticipating. But अभी तक तो मुझे bridge camp दिख नहीं रहा है, but maybe there are 8 teams in front for them, so they are in the zone. और ये जगह बहुत ही क्रिटिकल होगा, क्योंकि जैसे तुम ब्रिज पे रहते हो एक टाइम के लिए ठीक है, पर अगर ब्रिज में जोन आया नहीं फिर तुमको ओपन एरिया में जाना पड़ता है, एंड दैट इज रियली रियली डिफिकल्ट. जैसे देख सकते हैं टीम 17 को शायद से टीम 7 के प्लेयर्स को दिख गए हैं. दे आर वेटिंग फॉर दोज टीम्स. और अभी हम लोग का ये 4th जोन है एंड वी हैव 16 टीम्स स्टिल रिमेनिंग. So this is something really interesting. और 16 टीम बोलते टीम 9 ने खत्म कर दिया है and we have 15 teams remaining. So team 9 has got 3 kills to their team kill feed, and this is going to make extra difference in their whole point system. इसी के साथ टीम नंबर 9 ने टीम नंबर 8 को एलिमिनेट कर दिया. और जैसा कि गौरव आपने बोला, ये जो जोन बना है, दिस इज पर्सनली माय फेवरेट आल्सो, कि वाटर, लैंड एंड ब्रिज. क्योंकि अभी ये देखते हैं कि टीम नंबर 16 कैसे रोटेट कर रहेगी, या फिर ये ब्रिज होल्ड करना चाहेगी, क्योंकि टीम नंबर 4 ऑलरेडी दे आर कैंपिंग द ब्रिज. एंड द फेमस थिंग, स्नेकिंग, आपको आज एरेंगल में भी देखने को मिल रहा है सनहॉक के बाद. यहाँ पे टीम नंबर 10 अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए, एंड उधर से टीम नंबर 19 के चारों प्लेयर्स अभी भी अलाइव है. दैट इज अ बिग एडवांटेज फॉर द टीम. और टीम नंबर 19 बहुत ही प्यारा सा रोटेशन ले रही है. इसी के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर टीम नंबर 12, टीम नंबर 13, 10, 7
9 सारे के सारे टीम्स आपके स्क्रीन के ऊपर और सभी अपनी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। टीम नंबर 10 व्हीकल्स और स्मोक से अपने लिए एक कवर बना रहे हैं और टीम नंबर 7 जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में अपने लिए कंपाउंड होल्ड किए हैं। और इसी के साथ टीम नंबर 7 और टीम नंबर 17 के बीच में थोड़ी सी फायरिंग हुई थी, बट यहाँ पे देखते ही देखते टीम नंबर 9 के एक प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं और टीम नंबर 9 के प्लेयर, हाँ, और यहाँ पे टीम नंबर 17 का बहुत ही प्यारा फाइट। यहाँ पे टीम नंबर 19 एक और प्लेयर को नॉकडाउन करते हुए टीम नंबर 19 और इसी के साथ टीम नंबर 19 भी इस मैच से एलिमिनेट होती हुई। बहुत ही प्यारा फाइट दिखाया यहाँ पे टीम नंबर 17 ने, जो फाइट बहुत टाइम से मतलब रुके हुए थे टीम नंबर 17, उन्होंने वो फाइट पूरी कर ली। गौरव, एब्सोल्युटली 5 टीम किल हो गया है, क्या जबरदस्त सामने से क्लच किया है यार एकदम, मतलब दैट्स द बेस्ट रिगल पार्ट दैट यू कैन डू। और ये जो जोन फिर से बना है, इट्स 30% वाटर 70% लैंड, टीम्स नीड टू गेट इनटू द जोन। बहुत कम कवर है, जैसे हम लोग मैप के स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे कि इस मैप में अगर ऐसा जोन दे दिया तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि टीम्स कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करते हैं। मोस्टली टीम्स विल try to stay at the corners and try to stay alive। और ड्रॉप भी आ गया, आई डोंट थिंक एनीवन विल बी गोइंग फॉर द ड्रॉप। तो 12 टीम बचा हुआ है। वी हैव 1 प्लेयर फ्रॉम टीम 21 हु इज स्टिल अलाइव। टीम 4 के प्लेयर्स एकदम एंड से जा रहे हैं जोन के अंदर, वो लोग रोटेशन ले रहे हैं। टीम 16 हैज टेकन अ स्टॉप एट दिस पेट्रोल पंप और द डीजल पंप, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट दे हैव टेकन अ स्टॉप। और टीम 17 जो है जो मित्तल है, ही हैज पुट इन सम गुड डैमेज। एंड जैसे हम देख रहे हैं 10 टीम बचा हुआ है, अच्छा खासा फाइट चल रहा है उधर टीम 9 टीम 17 के उधर। तो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि जो बाकी टीम्स है, जो टीम 10 है, टीम 5 है, टीम 12 है, ये लोग जोन में कैसे आते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू फेस सम रियली गुड फायर उधर, क्योंकि जोन बहुत ही छोटा हो गया। दिस इज द 5th जोन। यू हैव 27 seconds remaining for the teams to get into the zone and the zone will start closing in। टीम 4 ब्रिज के पास फिर से पहुंच गए हैं, they are taking cover and they want to stay alive longer in the game, so that is something they would be looking at। I think they have lost out on the way a bit, but they will soon be there। टीम 21 के प्लेयर्स भी ऊपर है। टीम 21 का जो प्लेयर है, he is just waiting for that perfect moment कि टीम 4 उधर से निकल जाए, but I think टीम 4 has spotted him। और जैसे देख सकते हैं हम लोग टीम 16 भी जोन के एकदम पास पहुंच गए। टीम 4 का एक बंदा ही हैज टेकन अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन, अकेले जाके अपने टीम से थोड़ा दूर जाके। टीम 7 का एक प्लेयर नॉक हो गया। आतिश, दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ रियल गेम प्ले, व्हाट डू यू से? एग्जैक्टली, राइट नाउ वी आर इन द एंड गेम ऑफ द एरांगल मैच एंड जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी कोई भी टीम सेंटर नहीं होल्ड किए, सारे टीम्स अपने एजेस होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे टीम नंबर 10 टीम नंबर 7 के ऊपर एक फायरिंग करते हुए टीम नंबर 4 टीम नंबर 17 का एक प्लेयर उधर डाउन हो चुका है भाई। टीम नंबर 4 टीम नंबर 16 भी पीछे से उन्हें थर्ड पार्टी कर सकती है। टीम नंबर 17 शायद यहाँ पे हर तरफ से सैंडविच पोजीशन में आ चुकी है। टीम नंबर 4 है उनके आसपास, टीम नंबर 10 है, टीम नंबर 9 है और इसी के साथ टीम नंबर 4 के ओटायर सोल ओटायर, आई थिंक ही मिस्ड आउट ऑन हिज पाथ इनटू द सर्किल और जो कि उन्हें अभी वाटर रोटेशन करना पड़ रहा है। अगर वो वाटर से निकल सकते हैं दैट इज अ गुड थिंग। और इसी के साथ टीम नंबर 4 भी एलिमिनेट होते हुए इस मैच से। काफी प्यारा उन्होंने गेम प्ले दिखाया, बट वही बात होती है ना कि अगर आप सर्किल के अंदर, अगर आप लास्ट में जोन के अंदर नहीं आ सकते सो आपको कुछ नहीं हो सकता। और इसी के साथ जैसे तुमने बोला था कि जोन इज द MVP, तो हम लोगों को दिखने को मिला आई सॉ 3 players गेटिंग नॉक्ड आउट बिकॉज ऑफ द जोन ऑफ द 6th जोन। और जोन बहुत ही ओपन एरिया में बना है, नो कवर एज सच, देयर नो हाउसेस, सारे टीम्स को ओपन एरिया में आना पड़ेगा। टीम 17 टीम 10, वी हैव 5 टीम्स रिमेनिंग। टीम 10 के प्लेयर को डैमेज मिल रहा है अच्छा खासा, ही नीड्स टू गेट इनटू द जोन, ही हैज बीन नॉक्ड आउट। तो इधर जैसे देख रहे हैं कि टीम 10 के सिर्फ 2 प्लेयर बचे हुए हैं, एक प्लेयर नॉक्ड आउट है।
आई थिंक इज गोइंग टू गो इन फॉर द रिवाइव। और टीम 9 के 3 प्लेयर्स, उधर 4 प्लेयर्स बचे हुए, एक प्लेयर थोड़ा दूर रह रहा है, ही वांट्स टू स्टे अलाइव, दैट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। टीम 17 एक ही जगह पे अटका हुआ है, तो टीम 17 ऑल्सो इज इन द जोन। सारे टीम जोन में ही आ गए, नो वन हैज टेकन अ सेंट्रल पोजीशन, बट सबको जोन मिल गया है। टीम 9 का एक प्लेयर नॉक हो गया, आई थिंक टीम 10 के प्लेयर ने नॉक किया है, तो इट्स 16 प्लेयर्स रिमेनिंग, 5 टीम्स, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि टीम 5 जो है वो अकेला बंदा है, वो अकेला बचा हुआ है, एंड ही इज टेकिंग कवर इन वन हाउस, तो ही हैज टू बी रियली केयरफुल नाउ। बिल्कुल सही कहा गौरव। टीम नंबर 5 फिलहाल किसी भी फाइट लेने की मूड में नहीं है, वो लोग जरूर पोजीशन के लिए जाएंगे, बट यहाँ पे सारी टीम सर्किल में आ चुके हैं, बट टीम नंबर 16 का एक प्लेयर माफिया, और इसी के साथ टीम नंबर 16 भी एलिमिनेट हो चुकी है। माफिया इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, एंड इसी के साथ टीम नंबर 9, टीम नंबर 5, टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 17, दीज आर आवर लास्ट 4 टीम्स। टीम नंबर 17 के चारों प्लेयर अलाइव, टीम नंबर 9 के चारों प्लेयर अलाइव, टीम नंबर 10 के 3 प्लेयर्स अलाइव, एंड टीम नंबर 5 का एक अकेला प्लेयर जो अपनी टीम को अभी भी पोजीशन दिलाने के लिए जूझ रहा है। यहाँ पे टीम नंबर 17 स्मोक के रिजेस बना के काफी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो लोग व्हीकल्स और स्मोक से अपने लिए कवर बनाए। बिल्कुल सही, उन्होंने व्हीकल्स और स्मोक से अपने लिए कवर बना रहे हैं, और इसी के साथ अब हम देखेंगे कि टीम्स की अप्रोच किस तरह से बनेगी, क्योंकि टीम नंबर 10 को भी पता है टीम नंबर 17 वहां पे, टीम नंबर 9 को भी पता है, टीम नंबर 5 फिलहाल तो आप आराम ही कीजिए। टीम नंबर 5 गौरव। एब्सोल्युटली, जैसे अभी पूरा देख रहे हैं, टीम 10 इज कंटिन्यूअसली नेडिंग टीम 17, तो उनको उनका लोकेशन तो पता चल गया है स्मोक से। टीम 10 ऑल्सो नीड्स टू गेट इनटू द जोन, सिर्फ 17 सेकंड बचा हुआ है, और अगर जोन का डैमेज खा लिए तुम, तो फिर तुम तो गए बाबा। ये जोन अभी एकदम छोटा हुआ है, दिस इज द 7th जोन, और सारे टीम्स को जोन के अंदर आना पड़ेगा। इधर टीम 5 का जो प्लेयर है, ही इज ट्राइंग टू स्मोक एंड गेट इनटू द जोन, और टीम 9 भी जोन के अंदर आ गए, सारे टीम जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहे हैं। पूरा स्मोक से ढक गया है पूरा मैप अपना, जितना भी जोन बचा हुआ है, एंड दिस टीम्स नीड्स टू गेट इनटू द जोन एज सून एज पॉसिबल। टीम 17 आ गया, एक प्लेयर नॉक हो गया है, टीम 10 का एक प्लेयर बचा, एक प्लेयर नॉक हो गया है, तो टीम 17 नीड्स टू पिक अप देयर गट्स एज सून एज पॉसिबल सो दैट दे कैन नॉक आउट। 4 टीम बचा है, 12 लोग बचे हुए हैं। रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट, क्योंकि टीम 17 का जो प्लेयर है उसको रिवाइव देने का ट्राई कर रहे हैं। टीम 9 इज एट द कॉर्नर, दे हैव मेड अ वॉल विथ ऑल देयर व्हीकल्स, तो उनको भी थोड़ा अच्छा खासा डैमेज मिल रहा है। टीम 5 का जो प्लेयर है, interesting to see, he's still alive, he's right at the edge of the zone, and he is dead, he is totally dead right now with an amazing net। तो 3 टीम बचा है, टीम 9, टीम 10 एंड टीम 17। टीम 9 का सिर्फ एक प्लेयर नॉक है, बाकी तीनों प्लेयर जिंदा है, दैट प्लेयर इज ऑल्सो बीइंग रिवाइव्ड, तो 7 लोग बचे हुए, 2 टीम बचा हुआ है। टीम 10 हैज बीन एलिमिनेटेड। अतीश, व्हाट डू यू से? बहुत ही अच्छा मैच जा रहा है यहाँ पे। टीम नंबर 9 को टीम नंबर 17 की पोजीशंस बचा है, 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेट कर रहे हैं टीम नंबर 9, और मोस्टली अभी टीम नंबर 9 के सारे प्लेयर्स रशिंग के लिए आ चुके हैं, और बहुत ही शानदार गेम प्ले विंटेज की तरफ से, एक प्लेयर नॉक, 2 प्लेयर नॉक, और इसी के साथ टीम नंबर 9 ये मैच निकाल के लेते हुए, कितना अच्छा कंपोजर, क्या स्ट्रेटेजी, क्या रोटेशंस, और उसी के साथ एट लास्ट मोमेंट तक चारों के चारों प्लेयर अलाइव। गौरव, व्हाट ए मैच इट टर्न्ड आउट टू बी, क्या कहने? It was an amazing match. We see the first team with 8, 10, 11 kills, the second team with 13 kills or 12 kills, and it is something really really 13 kills rather, and it was something really really interesting to see। तो बहुत ही मस्त मैच था यार। ग्रुप डी ने तो फाड़ ही डाला, आज का दिन बना दिया, दोनों मैच में इतना अच्छा गेम प्ले, और ग्रुप डी का भी बहुत अच्छा गेम प्ले था। Leader of the winning team with us।
Yes, wait. Hello. And with that, we have the winning team leader of Fallout Coercion. We have Sky Ninja, I guess, with us, and his teammate O Malbedo. They have played a really, really good game, and it's really interesting to see how they manage the last zone. So, Sky Ninja, तुम्हारा last में strategy क्या था? कुछ नहीं, बस हमने देखा कि पोजीशन पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पोजीशन पॉइंट था, तो फिर हम सेंटर टू सेंटर खेलते गए। 2-3 टीम का रश आया हम पे, तो हमने उनको मतलब इजी टेक डाउन किया, क्योंकि वो जोन के बाहर से आ रहे थे, तो डैमेज थोड़ा उनको पड़ा ही था। फिर बाद में धीरे धीरे हमको अच्छी पोजीशन मिलते गए जोन में, तो उस हिसाब से इजी चिकन डिनर निकल गया, और कुछ नहीं। ओके ओके ओके। और जो लास्ट मोमेंट था, टीम 17 के जो प्लेयर थे, ही हैड नॉकड आउट 2 of your players। तुम्हारे 2 प्लेयर्स नॉक हो गए थे जो लास्ट फाइट था। और उधर से तुम लोग उस टाइम पे क्या चल रहा था कि कैसे you'll get into the fight and you'll knock out team 17 and wipe it off? कुछ नहीं, आईजीएल का कॉल आया, मतलब मैंने एक नॉक दिया, तो मुझे आईजीएल का कॉल आया कि 4v3 या 4v2 है, तो चलो सीधा रश कर देते, तो फिर हम सीधा ही घुस गए। तो उसने एक नॉक दे दिया, कुछ पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं थी, उसने बोला कि बहुत लेट है, चलो इजी चिकन डिनर, तो ऐसे हम घुस गए सीधा। एब्सोल्युटली, बहुत ही मस्त गेम था ये ब्रदर। एंड वी एक्सपेक्ट टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट stage of the tournament of Eklavya 1.0, which is a PUBG approved tournament. And stay tuned with us, guys. You'll have the results by the end of the day on our Instagram profile. You'll find our Instagram links in our YouTube descriptions. Along with this, I thank Atish. It was wonderful sharing the screen with you. And guys, please do like, comment, share, and subscribe our channel as much as you can, so that we can bring our content to in front of you. With that, Atish, I bid every one of our viewers adieu. We'll meet again tomorrow at 1 p.m. with Group E and Group F fighting for their spots, for the top 12 spots, from which each group जितने teams qualify करेंगे 12 teams, so each group is fighting for those top 12 spots. So we'll see you tomorrow. Till then, me and Atish signing off for the day. Have an amazing night, guys.